Good morning, students. Welcome to the class. Students, I hope you all are safe at your places and doing well. Students, this is my lecture 17 on chapter optics. Topic dispersion and angular dispersion. Dispersive power has already been taken up with you by Pooja ma'am. Today we will discuss scattering, some phenomena based on scattering, and some questions based on dispersion and scattering in our today's lecture. So let's start. What is scattering? Actually, I have seen that most of the students often get confused between scattering and dispersion. When they are asked to write the definition of scattering, they usually write what they have learned for dispersion. They write scattering as the splitting of white light into 7 colors. No, bachche, that is wrong. Dispersion is splitting of white light into 7 colors, but scattering is altogether different from dispersion. Scattering is the phenomena when light is deflected from its path due to its interaction with the particles of the medium through which it passes. Basically, what is scattering? Scattering is the interaction of the light with the particles of the medium. When incident light falls on the constituent particles of the medium, the particles of the medium, they absorb the energy and then they radiate the light in different directions. That re-radiation of the light in different directions after absorbing the light is known as scattering of light. So scattering phenomena basically takes place when there is an interaction of incident light with the constituent particles of the medium. It is different from the dispersion, so don't get confused when you are asked to write for scattering. Don't write the definition of dispersion. I have seen, it's my personal experience, I have found many students, when you ask them what is scattering of light, they will abruptly answer that it is the splitting of white light into 7 colors. No splitting of white lights into 7 colors. Once again, I am telling you that is the dispersion of light, and scattering of light is the deflection in the path of the light when the light interacts with the particles of the medium. So let's study what is types of scattering. Basically, we have 2 types of scattering. In here we are going to study only the one type, and that is the elastic scattering, which is also known as Rayleigh's scattering. Okay, students, now see what is elastic scattering. Elastic scattering takes place when the size of the particle of the medium is very, very small as compared to the wavelength. Here, when the incident light interacts with the constituent particles, there is no exchange of energy between the incident light and the particles of the medium. So, when there is no exchange of energy, there will be no change in the frequency, no change in the wavelength of the scattered light. Means कि जब incident light कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर जिस पार्टिकल से मीडियम बने हैं उनके ऊपर फॉल करती है, तो अगर उन पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जरूर होगी. इंसिडेंट लाइट और पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन तो होगी, लेकिन उस इंटरेक्शन की वजह से देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द पार्टिकल्स. अगर एनर्जी नहीं एक्सचेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी. सो जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी इंसिडेंट लाइट के साथ, वही एसोसिएटेड होगी विद द स्कैटर्ड लाइट. ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज ऑल्सो नोन एज Rayleigh's scattering, which we have to study in our chapter. ठीक है, हमें यहाँ पर Rayleigh scattering ही हम आगे स्टडी करेंगे. Now comes inelastic scattering. Inelastic scattering takes place where the size of the particle is very, very large as compared to the wavelength of the light used. So here, when the interaction takes place, there is
interchange of the energy, and consequently there will be change in the frequency and wavelength of the scattered light. Means to say that the scattered light will have frequency and wavelength different from that of the incident light. Okay, I hope it is clear. Now, to understand the basic phenomena which are based on scattering and which we observe in our daily life, first of all we have to go through the Rayleigh's law of scattering. According to the Rayleigh's law of scattering, the intensity of light wavelength lambda present in the scattered light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength lambda, provided the size of the scattering particles are much smaller than lambda. So here there is a condition. First of all, for the Rayleigh scattering, I have already told you there is a condition that the size of the particle which is scattering the light must be smaller, very very smaller rather, than the wavelength of light used. Now see, क्या होता है कि जब scattering होती है, ठीक है, what is Rayleigh's law of scattering? I am going to explain this. कि जब पार्टिकल है उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट जो है उसके साथ इंटरैक्ट करती है, दैट पार्टिकल एब्जॉर्ब्स, ठीक है. इफ वी आर यूजिंग द व्हाइट लाइट, यू नो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 वेवलेंथ्स. दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन डिस्पर्शन. कि व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स. ईच कलर इज एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट wavelength. So white light consists of 7 wavelengths. When white light is incident on the particle, जब constituent particle के ऊपर white light जो है वो incident होती है, that particle absorbs all the wavelengths. ठीक है, वो सारी wavelengths को क्या करता है? absorb करता है. और जो light वो re-radiate करता है after absorption, उस light को क्या वो कौन सी light बोलते हैं? मैंने अभी आपको बोला, that light is known as scattered light. That light is known as scattered light. उसने 7 के 7 कलर्स एब्जॉर्ब किए, और वो कौन सी लाइट, जो लाइट वो एमिट कर रहा है, जो लाइट वो री एमिट कर रहा है, जिसको हम स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं, उस स्कैटर्ड लाइट में कौन सी वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगी? दैट इज intensity of the scattered light is inversely proportional to the fourth power of the lambda. तो रेले ने एक लॉ दिया था, उसने कहा कि जो इंटेंसिटी, किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाएगी स्कैटर्ड लाइट में, जो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ इज फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी. आप देखोगे यहां मैंने लिखा है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ. तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उस वेवलेंथ की लाइट स्कैटर्ड लाइट में उसकी इंटेंसिटी सबसे कम प्रेजेंट होगी. मतलब कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर लाइट फॉल हुई, उसके बाद स्कैटर्ड लाइट उसमें से निकली. स्कैटर्ड लाइट में कौन सी वाली इंटेंसिटी ज्यादा होंगी, कौन सी वाली इंटेंसिटीज कम होंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ. जिसकी वेवलेंथ कम, उसकी इंटेंसिटी स्कैटर्ड लाइट में ज्यादा मिलेगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी हमें कम मिलेगी. ठीक है, बिकॉज इट इज क्लियर फ्रॉम द रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग. इसी रेलेज लॉ को लेकर हमने बाकी सारे फिनोमिनास एक्सप्लेन करने. But you must remember here the condition that the size of the particle must be very very small as compared to the wavelength of the light used. ठीक है, I hope it is clear. Now our second topic today is phenomena based on scattering. First of all, ये बहुत frequently asked question है, blue color of the sky. This question you can find this question in maximum number of sample papers, previous years questions. क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का भी आता है. कई बार इसका सिर्फ आपने सिंपल फिनोमिना का नाम लिखना होता है. नेम द फिनोमिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई. वहां पर आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा ये, और अगर आपको एक्सप्लेन करने में आएगा तो मे बी द क्वेश्चन कैरीज 2 और 3 मार्क्स. सो ब्लू कलर ऑफ द स्काई. ऑल ऑफ यू नो दैट अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर. अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर. उस एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है.
उस गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट कहां से आ रही है, सन से, वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन इज उन पार्टिकल्स का साइज इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट इंसिडेंट लाइट विच इज फॉलिंग ऑन देम। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या इसमें क्या पहला स्टेप क्या है कि अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हैज सर्टेन गैसेस, द पार्टिकल्स ऑफ दोज गैसेस हैव मॉलिक्यूल्स whose size is very very small as compared to the incident light which is falling on them due to sun, जो sun से वो receive कर रहे हैं। ठीक है, now since the sunlight has all the constituent colors, उसके अंदर वो सारी wavelengths present होंगी, but यहाँ पर रेले की जो scattering condition है that is being fulfilled, तो यहाँ पर क्या होगा, रेलेज लॉ इज एप्लीकेबल। तो जब इंसिडेंट लाइट उस पार्टिकल के ऊपर फॉल करेगी तो विच light will be scattered most? The light which has got the minimum wavelength. So out of the 7 colors, जो violet, indigo और blue, ये 3 colors हैं जिनकी, ये first 3 colors हैं जिनकी wavelength कम है, तो यही तीनों colors जो हैं वो सबसे ज्यादा scatter होंगे by those constituent particles। तो जब ये color बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होगी, पार्टिकल सारे पार्टिकल स्कैटर करेंगे, तो ब्लू कलर जो है वो पूरे आसमान में फैल जाएगा। तो फॉर एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आपको स्काई कैसा नजर आएगा, ब्लू। आई हैव रिटन हियर, इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। According to Rayleigh's law, intensity of scattered light I is inversely proportional to 4th power of lambda. So blue light of shorter wavelength is scattered much more than red light of larger wavelength. The blue component is proportionally more in light coming from different parts of the sky. That is why the sky appears blue. Is it clear? Now we will come to the second, and that is sun appears reddish during sunset or sunrise. क्या होता है, सनसेट और सनराइज के टाइम सन का जो कलर है वो रेड नजर आता है। वाई? आई विल एक्सप्लेन। जस्ट सी द डायग्राम। दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपको मैंने बोला क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि बहुत गैस, दिस एटमॉस्फेयर स्प्रेड्स ऑल ओवर, तो वहां पर गैसेस भी हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या एक्ट कर रहे हैं, एज द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यूरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग नून, दोपहर का जब टाइम होता है, ठीक है, द सन इज ओवरहेड, सन कहां पर है, हमारे सर के ऊपर। सो द सनलाइट, अगर मैं यहां पर खड़ी हूं तो सनलाइट हैज टू कवर स्मॉलर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द time during sunrise and sunset, because during sunrise and sunset where the sun is lying, the sun is lying at the horizon, horizon हो गया यहाँ पर, इस position पर। this is the position of the sun during sunrise and sunset and this is the position of the sun during noon। तो आप देखो comparatively, अगर इस sunlight को अर्थ के यहाँ पर खड़े हुए ऑब्जर्वर की आंखों में आना है तो कंपैरेटिवली उसको यहाँ से यहाँ आने में कम रास्ता तय करना है एज कंपेयर टू ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट व्हेन द सन इज लाइंग एट द होराइजन। तो जब सन कम रास्ता ट्रेवल करेगा तो सन के पार्ट, जो सनलाइट है उसको कम मॉलिक्यूल्स रास्ते में इंटरैक्शन के लिए मिलेंगे। जब कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सो देयर विल बी लेस स्कैटरिंग, रास्ता कम, मॉलिक्यूल्स कम, लेस स्कैटरिंग। जब लेस स्कैटरिंग होगी तो आपको क्या होगा कि यहां से ये जो सन की स्कैटरिंग कम हुई है तो ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होगा, ब्लू कलर ही स्कैटर होगा। तो जो आपको यहाँ पर, आप जब आप यहाँ से अर्थ से सन को देखोगे तो आपको सन का कलर जो है वो नॉर्मल जैसा उसका कलर होता है वैसा ही नजर आएगा, वो आपको उसका कोई पर्टिकुलर क्रिम्सन रेड कलर नजर नहीं आएगा। आप देखो क्या हुआ, जब सन यहाँ पर है तो ज्यादा ये पार्टिकल्स ने क्या करना है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को इसके साथ इसने इंटरैक्ट करना है। जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करना है तो बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होगी,
बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होगी तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होगा? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर तो सारा स्कैटर हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि सन से जो लाइट हमारी आंखों में फॉल कर रही है उसमें ब्लू वाले कंपोनेंट, सारे तीनों कंपोनेंट जो है वो मिसिंग होंगे, क्योंकि वो तो स्कैटर हो चुके होंगे। मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि हमारी आंखों को वही कलर नजर आता है जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो सन के पास तो व्हाइट सारे कलर्स थे, सन के पास तो व्हाइट लाइट थी, सन के पास 7 के 7 कलर्स थे। लेकिन जब सन की रे जो है वो यहां से ट्रेवल करती हुई अर्थ के ऊपर आई तो ब्लू वाले तीनों जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर है, शॉर्टर वेवलेंथ्स है, वो सारी स्कैटर हो गई, वो तो आसमान में फैल गई। तो सन से जो अब लाइट हमें आ रही है उसमें सिर्फ कौन सी वेवलेंथ्स बच जाएंगी? जो लार्जर वेवलेंथ्स है, जैसे कि आपकी ऑरेंज और रेड हो गई। और ऑरेंज और रेड मिक्स करके जो कलर बनता है, दैट इज द कलर विच वी सी ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, एंड दैट इज नोन एज क्रिम्सन रेड कलर। तो समझ में आया क्यों होता है? क्योंकि व्हेन द सन इज ड्यूरिंग नून, व्हेन द सन इज ओवरहेड होने पे क्या होता है? लेस डिस्टेंस, लेस मॉलिक्यूल इंटरैक्शन, लेस स्कैटरिंग, तो लेस ब्लू जो है वो स्कैटर हुआ होता है, इसीलिए हमें कलर नॉर्मल नजर आता है। सन का स्काई ब्लू ही नजर आती है उसके सराउंडिंग एरिया में, मतलब सन के जो अराउंड का जो स्काई है वो हमें ब्लू ही कलर की नजर आती है। लेकिन जब वो होराइजन पर है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करना है, मतलब ज्यादा स्कैटरिंग होनी है। ज्यादा स्कैटरिंग का मतलब है ज्यादा ब्लू कलर जो है वो आसमान में, मैक्सिमम ब्लू कलर जो है वो फैल जाएगा। तो जो इस पोर्शन से लाइट आ रही है वो डिवॉइड ऑफ ब्लू कलर है, उसके पास कौन सा कलर रह गया है? सिर्फ ऑरेंज और रेड। तो हमें लगेगा कि सन से जो लाइट आई है उसमें ब्लू कलर के कंपोनेंट्स तो है ही नहीं, वो वहां से क्या है? सिर्फ ऑरेंज और रेड कंपोनेंट्स है। तो सराउंडिंग स्काई है सन के, वो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हमें रेड कलर की नजर आएगी। I hope it is clear. At the time of sunrise or sunset, the sun is near the horizon or farthest in light rays from sun passes through larger distance of the atmosphere. Due to this, all the wavelengths scatter mostly in different parts of its path, whereas red and orange color scatters mostly in the last part of the atmosphere while reaching an observer. This makes the sky appears reddish during sunrise or sunset. ठीक है? Now you have oftenly seen that wherever there is some danger, वहां पर एक danger signal लगाया जाता है, and that danger signals are usually painted in red color. ठीक है? Why? Because you know red has got the maximum wavelength, और जिसकी wavelength ज्यादा होती है वो कलर कम स्कैटर होता है, and if this color is scattered least, तो अगर हम दूर से भी देखेंगे तो ये कलर स्कैटर नहीं होगा, वो चीज हमें रेड की रेड ही नजर आएगी। अगर कोई और कलर होता तो वो तो अगर हम दूर से देखते तो वो ड्यू टू द स्कैटरिंग वो फैल जाता और वो कलर हमें डिम नजर आती। बट रेड कलर एक ऐसा कलर है विच इज हैविंग लार्ज वेवलेंथ, एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट उस रेड कलर मतलब वो उस ऑब्जेक्ट से निकलेगी, वो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम स्कैटर होगी। तो अगर स्कैटर जो सबसे कम स्कैटर होगी वही लाइट जो है वो हमारी आंखों में फॉल करेगी, एंड वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। सो फॉगी कंडीशंस होती हैं, जब कहीं फॉग होती है उस समय भी रेड कलर की चीज जो है वो आसानी से नजर आ जाती है, बिकॉज ऑफ द लेस स्कैटरिंग ऑफ द रेड कलर। ठीक है? Because the red color light suffers least scattering, hence it travels farthest as compared to other colors of light. क्योंकि बाकी colors की जो wavelength है वो red से कम है, and according to the Rayleigh's law of scattering उनकी स्कैटरिंग जो है वो ज्यादा होती है उन कलर्स की, और वो दूर से आने मतलब ज्यादा रास्ता कवर करने पर वो कलर फैल जाता है इनटू द सराउंडिंग एरिया, और वो चीज हमें उस कलर की प्रॉपरली नजर नहीं आती, ब्लर्ड नजर आती है। बट दिस इज नॉट द केस विद द रेड कलर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी रेड इज यूज्ड इन द डेंजर सिग्नल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई द क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट? बिकॉज द क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। क्लाउड्स के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। एटमॉस्फेयर में क्या थे? मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस जो उसमें प्रेजेंट है, और क्लाउड्स जो है दे आर मेड अप ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स हुज साइज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट।
These larger particles dust and water do not follow, ये Rayleigh's law को follow नहीं करते, इसलिए सभी colors जो हैं वो equal intensity से scatter होते हैं. उसमें preferential scattering of light does not take place. What is preferential? मतलब एक color को preference मिलती है, लेकिन इस केस में जहां पर रेलेज लॉ फॉलो नहीं होता है वहां पर सभी कलर्स जो हैं वो इक्वल इंटेंसिटी से स्कैटर होते हैं, और जब वो इक्वल इंटेंसिटी से स्कैटर हो रहे हैं तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस कलर्स अगेन वी गेट अ व्हाइट लाइट. ड्यू टू दिस द क्लाउड्स अपीयर व्हाइट इन कलर. स्कैटरिंग अगर होगी भी, अगर वो डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट स्कैटर करेंगे भी, तो वो सभी कलर्स को एक ही समान, एक ही इंटेंसिटी, जो स्कैटरिंग लाइट की इंटेंसिटी निकलेगी उसमें सभी कलर्स की इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होगी. एंड ऑन द रिकॉम्बिनेशन दे अगेन गिव अस व्हाइट लाइट. दैट इज द रीजन व्हाई द क्लाउड्स जनरली अपीयर व्हाइट. स्काई ऑफ द मून इज ब्लैक. ठीक है, मून की स्काई हमेशा हमें ब्लैक नजर आती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. एक्सेप्ट अर्थ, और कहीं पर भी अभी तक एटमॉस्फेयर की कंफर्मेशन नहीं है. तो मून पर क्या होता है कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, नो स्कैटरिंग. जब स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो वहां पर हमें क्या नजर आएगा, वहां पर हमें ब्लैक ही नजर आएगा. इसीलिए जो अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर होती हैं, जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस में जाते हैं तो वहां पर भी उनको स्काई जो है वो ब्लैक नजर आती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस. Out of blue and red light, which is deviated more by a prism? ठीक है. Now, prism में जो deviation होती है, I have done with you the deviation formula for deviation in the prism. That is mu -1 into a. ठीक है, ये होता है, this is the deviation in the prism. ठीक. Now you know कि deviation is directly proportional to refractive index. ठीक है, deviation is directly proportional to refractive index. अब refractive index का with wavelength एक relation है, that is known as Koch's relation. So I'll tell you what is that. Koch's relation is variation of refractive index with lambda. It is a upon lambda square, b upon lambda 4. This is like this, where a and b are constants. ठीक है, ये a and b ये क्या है, constants है. तो इस रिलेशन से हमने क्या फाइंड आउट किया, इस रिलेशन का आउटकम क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda square, or you can say it is inversely proportional to, for the sake of this convenience we take refractive indices inversely proportional to lambda. ठीक है. Now deviation is directly proportional to refractive index. Refractive index is inversely proportional to lambda. So deviation you can say is inversely proportional to lambda. तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें डेविएशन कम आएगी. तो अब देखो आपको क्या पूछा गया, ब्लू एंड रेड. तो बताओ ब्लू और रेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ कम है. तो आप देखोगे कि ब्लू कलर की वेवलेंथ जो होती है दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ रेड. सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड दैट deviation of, क्योंकि इनवर्सली है तो deviation of blue will be greater than the deviation of red. तो कौन सा कलर ज्यादा डिविएट होगा, ब्लू कलर डिविएट ज्यादा होगा और रेड कलर डिविएट कम होगा. ओके. How is the refractive index of a medium related to the wavelength of the incident light? That I have already written here. That is Cauchy's relation. अगर आप कॉचीज रिलेशन याद रखेंगे और ये डिविएशन वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस निकल जाएंगे. दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर बी अपॉन लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स. ओके. What will be the color of the sky in the absence of the atmosphere? It is black because there will be no scattering. Now explain why white light is dispersed when passing through a prism.
वेरी इजी, ये पूजा मैम ने ऑलरेडी आपको कराया है. व्हाइट लाइट क्यों डिस्पर्स होती है व्हेन इट पासिस थ्रू द प्रिज्म? बिकॉज व्हाइट लाइट हैज 7 कलर्स. ठीक है, ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ. और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो हर कलर की, सो ईच कलर विल हैव इट्स ओन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो ईच, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग है तो हर कलर की वेलोसिटी भी मीडियम में क्या होगी? अलग. सो ईच कलर विल ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन द रिफ्रैक्टिंग मीडियम. ठीक है, तो जब हर कलर की स्पीड अलग अलग होती है तो क्या होगा? सारे कलर जैसे ही प्रिज्म में जाएंगे वो अपनी अपनी स्पीड से चलेंगे, पाथ चेंज हो जाएगा. सो दिस इज व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स, व्हाट हैपन्स? ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये होता है इसका इंसिडेंट पाथ. ठीक है, और ये हमें स्क्रीन पे ये कलर हमें यहां पर मिल जाते हैं. ठीक है, सो ईच कलर विल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड. सबकी स्पीड जो होगी डिफरेंट होगी, सबकी डिविएशन भी क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है. तो अब डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? म्यू -1 इंटू ए. क्योंकि हर कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर का डिफरेंट है तो डिविएशन एंगल भी हर कलर का क्या होगा? डिफरेंट होगा. सारे कलर्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. अब कौन सा कलर जो है वो सबसे ज्यादा डिविएट होता है और कौन सा कलर जो है वो सबसे कम डिविएट होता है, वो मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो सबसे कम डिविएट होता है. तो रेड वाला जो है आपका इट इज, ठीक है, तो आपकी रेड की डिविएशन सबसे कम होती है. एज यहां पर आप वॉयलेट लिख लो. ठीक है, इसीलिए देखो आप, ये इसका इंसिडेंट पाथ था, ये डिविएशन एंगल्स हैं. ये डिविएशन, दिस डिविएशन एंगल इज फॉर दिस एंड दिस डिविएशन एंगल इज फॉर वॉयलेट. तो सबसे ज्यादा डिविएशन एंगल किसमें है? वॉयलेट में. इसलिए वॉयलेट अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा डिविएट होता है, इसलिए वो स्पेक्ट्रम के का बॉटम फॉर्म करता है, इसलिए वो स्पेक्ट्रम के सबसे नीचे होता है. ठीक है, और रेड कलर जो है वो ऊपर इसीलिए होता है स्पेक्ट्रम में क्योंकि रेड कलर पे सबसे कम डिविएशन होती है अपने ओरिजिनल पाथ से, इसलिए वो ऊपर आता है स्पेक्ट्रम के. नाउ देयर इज वन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस. Mr. Agarwal, a retired professor of physics, was walking with his grandson. It was last week of December, and so it was dark around 5:30 p.m. The street lights were on, and the yellow light flooded the area around. The boy asked, "Professor, why yellow lights were used when white light were brighter?" The professor answered that during foggy days, the tiny droplets acts as prisms, splitting white light into its constituent colors and thus reducing the clarity. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विच फिनोमिना. आपको मैंने पहले भी बोला, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें फिनोमिना उन्होंने सारे एक्सप्लेनेशन दी होती है, हमें सिर्फ पूछा होता है कि इसमें कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है. तो आप बताओ कि अगर वो एक फॉगी डे में जा रहे हैं और सुबह सुबह अराउंड 5:30 p.m. इट इज ऑलमोस्ट डार्क ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर, और जब वो देखता है लड़का कि हर जगह जो है वो येलो लाइट का इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ द व्हाइट लाइट, तो वो अपने ग्रैंडफादर से, हु इज प्रोफेशनली रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, वो पूछता है कि अगर व्हाइट लाइट जो है वो वैसे तो ब्राइटर होती है, तो फिर ज्यादा ब्राइटनेस के लिए इस समय हमने येलो लाइट्स का इस्तेमाल क्यों किया एज कंपेयर टू द इंस्टेड ऑफ द व्हाइट लाइट. तो उसके जो ग्रैंडफादर है उसको एक्सप्लेन करते हैं, बीइंग द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, कि ड्यूरिंग दीज फॉगी डेज देयर आर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द
एटमॉस्फेयर जो एयर है, क्योंकि बारिश हुई होती है और जो फॉग के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज द स्मॉल प्रिज्म्स, और व्हाइट लाइट जब उसमें से पास करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट करेंगे एज प्रिज्म्स, और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट के कारण जब वो व्हाइट लाइट उन ड्रॉपलेट्स से बाहर निकलेगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो चुकी होगी, जिसकी वजह से सातों हमें एक इमेज के बजाय अब एक चीज की क्या है, ब्लर्ड बहुत सारी इमेजेस, क्योंकि हर कलर जो है वो अलग से फोकस होगा, तो हर कलर जो है वो अलग अलग, मतलब वो डिफ्यूज हो जाएगी, वो जो आपकी इमेज जो चीजों की बनेगी वो डिफ्यूज हो जाएगी और हमें चीजें जो है वो क्लियरली नजर नहीं आएंगी। इसीलिए इंस्टेड ऑफ व्हाइट लाइट हम येलो लाइट का, मोनोक्रोमैटिक लाइट का, सिंगल वेवलेंथ की लाइट का इस्तेमाल इसमें करते हैं ताकि हमें चीजें जो है वो क्लियरली नजर आए। ठीक है, तो व्हाट फिनोमेना वाज द प्रोफेसर रेफरिंग टू, किस फिनोमेना के बारे में बात की, डिस्पर्शन विच हैपेंस एज स्पीड ऑफ ईच कलर्स इज डिफरेंट व्हेन दे एंटर ग्लास। तो आपने एक्सप्लेन करना कि डिस्पर्शन यहाँ क्यों होती है, आपको पता है मैंने अभी पढ़ाया डिस्पर्शन का कि डिस्पर्शन क्यों होती है। ये सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पर प्रिज्म की जगह, इस क्वेश्चन में प्रिज्म की जगह वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एक्ट करेगी एज ए प्रिज्म। अब गिव वन एप्लीकेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रिज्म इज यूज्ड फॉर द स्टडिंग एंड एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्टेंट लाइट सोर्सेज, जो सोर्सेज बहुत दूर पड़ी होती हैं उनका अगर हमें स्पेक्ट्रम, जैसे कि फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं जिनको हम नॉर्मली ऐसे जो है वो स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए हम डिस्पर्शन का फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ जो स्पेक्ट्रम, जो डिस्टेंट लाइट वहां से आती है उसका स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है उसको स्टडी करके हम वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। What values of the boy reflect from this conversation? इस कॉन्वर्सेशन से आपको लड़के की किस वैल्यू का पता चला। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, अगर किसी ने वैल्यू, वो हमारा सब्जेक्ट क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स से वो रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब हमें ये पूछा जाएगा कि व्हाट वैल्यूज आर डिपिक्टेड बाय द बॉय हु आस्क्ड दीज क्वेश्चंस, तो कौन सी वाली वैल्यूज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक तो उसमें आप अवेयरनेस लिख सकते हो, क्यूरियोसिटी लिख सकते हो, रिसर्च माइंडेडनेस लिख सकते हो, फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट लिख सकते हो। ये कोई भी जवाब आप इसमें विच इज कनेक्टेड विद द जनरल अवेयरनेस, विद द साइंटिफिक अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो साइंस से रिलेटेड उसकी अवेयरनेस है, उसमें से आप कोई भी क्वालिटी आप डालोगे आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज आप वीडियोस पूरी देखा करें, आप लोग सिर्फ थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते हैं और पेजेस को कॉपी करते हैं, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको नोट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सो व्हेनेवर यू फाइंड टाइम, सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।